Good morning students, and once again I welcome you all to my education channel The Guru Upanishad English classes. Okay. In this video I am going to talk about the long walk to the freedom, second chapter of 10th class. Long walk to the freedom, second chapter of 10th class, written by Nelson Mandela, 1918 to 2013. We all know who is Nelson Mandela. Okay, he is that great revolutionist and he is that great freedom struggler, freedom fighter of South Africa, who ended the racial system apartheid. Okay, who ended the racial system apartheid, in which black people with black races were hated in Africa, and whole Africa was oppressed by white peoples, white supremacy. So in his autobiography, he speaks that how has the freedom been achieved. Okay, and in your book we have a short extract. Okay, we have a short extract of his autobiography, Long Walk to Freedom. Okay, so we'll start discussing it. I'll give you a complete comprehension understanding of lesson, paragraph by paragraph explanation. Okay, so your extract in the book starts with the discussion of 10th May, with the depiction of 10th May 1994. Okay, आपके बुक में 10th May 1994 की बात की गई है. On this day, Nelson Mandela was feeling very much overwhelmed. Okay, because the day had come. They were going to take the inauguration. That day has been called an inauguration, the Ottoman Day of South Africa. Okay, and lots of leaders from different places were coming to give respect, pay respect, and encourage him. Okay, he was surrounded by leaders, more than 150 leaders, more than 100 leaders throughout the world. कहानी जो है, एक्सट्रैक्ट जो है, वो शुरुआत किया गया है 10 मई 1994 के दिन को वर्णन करते हुए. इस दिन क्या होता है, नेल्सन मंडेला जो है वो पूरे विश्व के लीडर से घिरे हुए हैं. क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि उस दिन एक इनॉग्रेशन सभा होने जानी थी. ठीक है, और उस इनॉग्रेशन सभा में एक फ्री इलेक्टेड डेमोक्रेटिक कंट्री, जो ना ब्लैक का है और ना साउथ का है, ना वाइट का है, दोनों का ही है वो. ठीक है, अ गवर्नमेंट फॉर ब्लैक, अ गवर्नमेंट फॉर वाइट, अ गवर्नमेंट फॉर एवरीबडी, अ गवर्नमेंट फॉर पुअर, फॉर रिच एवरीबडी. मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप होने वाली थी उस दिन. उन लोगों ने जीत हासिल कर ली थी. तो नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे नेताओं से वो घिरे हुए थे जो उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए थे दूसरे देशों से. ओके, वो जो सेरेमनी है इन पैराग्राफ नंबर 2, इट हैज बीन टोल्ड दैट सेरेमनी वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया. यूनियन बिल्डिंग का जो एम्फीथिएटर था, एम्फीथिएटर मतलब एक खुला मैदान. ठीक है, एक खुला सभा स्थल, जैसे कि क्रिकेट का मैदान होता है. ठीक है, उस प्रकार का जो एम्फीथिएटर था प्रेटोरिया में बना हुआ यूनियन बिल्डिंग द्वारा, उसी में वो सभा, वो इनॉग्रेशन टेक प्लेस होने वाली थी. इन दैट इनॉग्रेशन द अफ्रीका वाज गोइंग टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, एंड इन दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके, नेल्सन मंडेला वाज गोइंग टू टेक एन ओथ एज president, and different other leaders such as Mr. De Klerk was going to take an oath as second deputy president, and Thabo Mbeki was going to take an oath as first deputy president. Okay, that's why that day was very important. Okay, not only for Nelson Mandela, for the world history also. ठीक है, and now it was नेल्सन मंडेला's turn. नेल्सन मंडेला का टर्न था कि अभी प्लेज लेना था. ओके, और उन्होंने अपने प्लेज में क्या कहा कि इट इज जस्ट ग्लोरी ऑफ people. It is just glory of
पीपल एंड न्यू बॉर्न लिबर्टी, लोगों की जीत है और जो लिबर्टी, आज़ादी जो नई नई जन्म लिया है, जिसने अभी एक नई आज़ादी जिसने जन्म लिया है, उसकी जीत है उन्होंने कहा। आपके बुक में कुछ उनके कहे गए वर्ड्स दिए हुए हैं। उन्होंने अपने आप को संबोधित करते हुए और सारे ब्लैक पीपल को संबोधित करते हुए, he addressed the whole black people and said that those who were outlawed, okay, those who were outlawed, okay, were now given a privilege to be part of, to be the former of democracy or democratic government, okay, and he thanked all the distinguished guests, all the special guests that had come from different of places, okay, as well as he made a promise, he take an oath that South Africa now onwards will not face any oppression, will not face any suppression on the basis of, on any basis, on the basis of color, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of races, okay. No, he took an oath that now the new democratic government was for all, was for men and women, was for child and adult, was for black and white, for everybody. नेल्सन मंडेला ने अपने सभा में जब वो शपथ ले रहे थे, तो उस शपथ में उन्होंने विदेश से आए हुए नेताओं का धन्यवाद दिया उन्होंने, और उस जीत को उन्होंने लोगों की जीत और उस राष्ट्र की जीत बताई। साथ ही साथ ये शपथ लिया कि अब जो है उनका देश जो है कभी भी किसी प्रकार के ऑपरेशन को, एक दूसरे पे अत्याचार को नहीं सहेगा, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, और सभी वहां पे खुलकर जी पाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि एक समय जिन्हें नियम से हटा दिया गया था, कानून से बाहर रखा गया था, उनको ये मौका मिला है कि वो आगे एक देश को चलाएं और एक नया राष्ट्र बनाएं। ओके, सो उन्होंने अफ्रीका को और ईश्वर को धन्यवाद दिया और आशा किया कि ये सूरज जो है, नया सूरज जो है डेमोक्रेसी का होगा था, वो कभी खत्म ना हो। ओके, एंड आफ्टर द ओथ सेरेमनी soon they lifted their eyes to look up into the sky, and into that sky some helicopters, some choppers were moving, military choppers were moving, okay, were diving and showing stunts। ठीक है, ओथ सेरेमनी के बाद इन लोगों ने आकाश की तरफ देखा, तो आकाश में क्या था, इनके जीत को एक्नॉलेज करने के लिए, ठीक है, जो मिलिट्री चॉपर्स थे या जेट्स थे, ठीक है, मिलिट्री फोर्स का, उन्होंने कुछ आकाश में करतब करना शुरू किया, जिसमें स्मोक निकालना या रिबन निकालना, जैसे झांकी दिखाई जाती है उसी तरीके से। ठीक है, द थिंग वाज दैट ये वही मिलिट्री थी जो अभी से कुछ साल पहले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करने के लिए आतुर होती थी, और जब भी ये कुछ विरोध करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, whenever he protested, whenever he raised his voice, he was arrested by the same military. But now that military force was obliged to accept him as their democratic leader, okay, and they were paying their tribute. South African Defense Force and police, okay, they were paying their tribute, they were saluting Nelson Mandela and pledged their loyalty to him. उन्होंने अपनी वफादारी नए डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रति प्लेज लिया, ठीक है, वफादारी के लिए शपथ लिया उन्होंने। लेकिन यही फोर्सेस जो हैं कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले नेल्सन मंडेला को कितने ही बार इस फोर्स ने गिरफ्तार किया था, जेल में डाला था, उनके ऊपर अत्याचार किया था, ठीक है, बिकॉज दैट टाइम ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। ओके, and that day was also special because on that day in the history of South Africa, two national songs were sung, one for white people and one for black people. White लोगों ने अपने विजन्स को निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका नाम की नेशनल सॉन्ग में गाया, और ब्लैक पीपल ने डाई स्टेम जो ओल्ड रिपब्लिक का एंथम था उसको गाया उन लोगों ने। ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी दैट
On the day of inauguration, he was actually overwhelmed. बहुत ही खुश थे because he had just created a history. Okay, एक history create कर दिया था because in the first century of 20th, in the first decade of 20th century, South Africa had seen very brutal killings. Okay, और a mass scare because due to Anglo-Boer war. ठीक है, विदेशी और काले लोगों के बीच में, व्हाइट और ब्लैक पीपल के बीच में जो वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उसमें एक बहुत त्रासदी आई थी, वहां पे बहुत लोगों को मारा गया था और एक नया सिस्टम निकल कर आया था. एंड व्हाट वाज दैट सिस्टम? दैट सिस्टम वाज टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस एंड दैट वाज कॉल्ड एपार्थाइड. ठीक है, एपार्थाइड की एक नई प्रचलन उसमें लगा दिया गया था जो कि एकदम बहुत ही अनह्यूमेन था. दैट वाज नॉट फुलफिलिंग द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी. मानवता के बिल्कुल खिलाफ था ये. हम किसी को किसी के जाति, रंग भेद या किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते. वी ऑल आर इक्वल. ओके, लेकिन साउथ अफ्रीका में उनके स्किन के रंग के आधार पे भेदभाव किया जाने लगा, सताया जाने लगा, ऑप्रेस किया जाने लगा. ओके, और उसके बाद से द जर्नी, नेक्स्ट पैराग्राफ, इट हैज बीन डिस्क्राइब दैट आफ्टर दैट द जर्नी ऑफ सफरिंग्स स्टार्टेड. यातनाओं का जीवन जो है, यातनाओं की यात्रा जो है वो शुरू हो गई. अफ्रीका के जो कई हजारों लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इतना सहा उस गंदे नियम के वजह से, उस गंदे प्रचलन प्रथा के वजह से, अपार्थाइड के वजह से, जिसकी कभी भरपाई नहीं कर सकती. और लड़ते लड़ते वो लोग उस दिन में शायद जिंदा नहीं है देखने के लिए वे लोग कि उनकी आज लड़ाई जो है वो सक्सेसफुल उस दिन को 10th में 1994 को कंप्लीट हो गई. ओके, और इस बात का नेल्सन मंडेला को दुख था. He was sad because he could not thank those people who died into that struggle, who sacrificed their everything, life, family, everything into that struggle. जिन लोगों ने उस स्ट्रगल में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मर गए, ठीक है, उनको धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला कि उन्हीं की लड़ाई के कारण, उन्हीं के सहायता के कारण आज ये आज़ादी का दिन, आज ये नया सवेरा, a new morning has been laid, has come up in the South Africa. Okay, so it was that. अब आगे के पैराग्राफ में आपकी स्टोरी में डिस्कस किया गया है दैट जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था, हाउ वाज दैट फ्रीडम रियली अचीव्ड. उस फ्रीडम को रियली अचीव कैसे किया गया, उसके लिए कितना त्याग, सैक्रिफाइसेस किए गए, ठीक है, कितने किलिंग्स हुए, कितने स्ट्रगल्स हुए. ओके, सो इट वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी लॉन्ग वॉक. इन फैक्ट सच में वो एक बहुत लंबी यात्रा थी साउथ अफ्रीका की. ओके, उस अपार्थाइड के सिस्टम के कारण कई सारे ऑपरेशंस हुए, ब्रूचुअलिटी हुए, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्दयता से मार पीट और जेल में डाल देना और खाना ना देना या अधिकारों से वंचन रखना, ठीक है, बहुत सारी तरीके की दशकों तक ऐसा चलने लगा, जिसके कारण कई सारे बड़े बड़े कॉमरेड्स अफ्रीका में, कई सारे कॉमरेड्स ने जन्म लिया. ओके, दैट अपार्थाइड सिस्टम, दैट ऑपरेशन, दैट ब्रूचुअल किलिंग, दैट deprivation in South Africa, okay, led to birth of many comrades, many great freedom strugglers, many great freedom fighter comrades like the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulis, Yusuf Dados, Bram Fisher, Robert Sobukwe's. Okay, and they were extraordinary men of the time. ठीक है, इतने महान शख्सियतों ने जन्म लिया और उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ा. ओके, एंड नेल्सन मंडेला in the next paragraph, Nelson Mandela feels happy and proud that his country had lots of rich mineral like gold and diamond submerged into the land, okay, beneath the land, but he was more proud that he had true diamond, okay, in the form of his people, in the form of these comrades who helped him to take the fight for freedom ahead, जिन्होंने उसको मदद की नेल्सन मंडेला को आजादी की लड़ाई को आगे ले जाने में. ओके, सो
time started and they started reacting, they started opposing that ill system, ठीक है, उस खराब तंत्र का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ओके। और पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका गेव देयर एवरीथिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्लियर किया जा रहा है कि अफ्रीका के लोगों ने, महिलाओं ने, आदमियों ने, मर्दों ने, सबने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, ठीक है। और उनसे ही नेल्सन मंडेला को प्रेरणा मिली, उनसे इन्होंने एक नया चीज सीखा कि व्हाट इज फियर, व्हाट इज करेज, असली साहस क्या है। करेज इज नॉट मीन दैट वन हु नॉट फियर, वन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बट एक्चुअल करेज इज गेटिंग विक्ट्री ओवर द फियर। ऐसा नहीं कि जो नहीं डरता है तो वो बहादुर है, बल्कि जो डर से जीत जाए, ठीक है, डर के आगे जीत है, या डर से जीत जाए, डर के बाद वो आगे अपने लाइफ में बढ़ चले, तो उसे असली साहसी कहते हैं। ये बात नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के साहस से सीखी। इन नेक्स्ट पैराग्राफ ही स्पीक्स दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन। कोई जन्म से ही किसी एक दूसरे से नफरत करते हुए पैदा नहीं लेता, स्पेशली बिकॉज ऑफ कलर ऑफ स्किन, ओके। एंड ही थिंक्स दैट इफ ही लर्न्स टू हेट ईच अदर, ओके, इफ ही लर्न्स टू हेट अदर्स, he could be easily taught to love other, because love is more natural than hate। नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर बात नेल्सन मंडेला ने कही है कि वैसे तो कोई जन्म से किसी से नफरत करता हुआ पैदा नहीं लेता, और वो यदि किसी दूसरे से नफरत करना अपने जिंदगी में सीख लेता है, इसका मतलब उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और ऐसा सिखाना, प्यार करना सिखाना उसको आसान होगा, आसानी से सिखाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज कभी भी हमें नफरत करने में किसी से टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, बहुत मुश्किल से आता है, बट हम जल्दी किसी चीज़ों को प्रशंसा करते हैं, किसी चीज़ों के प्रति इंस्पायर हो जाते हैं, या अट्रैक्ट हो जाते हैं, या प्यार करते हैं। मतलब प्यार जो है वो हमारे ह्यूमन हार्ट का इंटीग्रल पार्ट है, जो अंदर ही है, बस उसे फाइंड आउट करना है। बट हेट हम बाहर से अपने अंदर डालते हैं, दैट इज अ टफ टास्क एंड टू लव इज इजी, ओके। ये बात उन्होंने यहाँ पे जाना, ओके। और नेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ उन्होंने आगे और बताया है कि किस प्रकार से उनकी जो लाइफ है वो चेंज कैसे हो गई। वो आगे के 2 पैराग्राफ में बताते हैं, इन द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ, ओके। ही टेल्स दैट ही वॉज नॉट बॉर्न फ्री, ठीक है। ही वॉज नॉट बॉर्न टू बी डिमांडिंग ऑफ फ्रीडम, ओके। मतलब उनका जन्म जो है वो फ्री मांगने के लिए, मतलब फ्रीडम मांगने के लिए नहीं हुआ था, बिकॉज बेसिकली ही वॉज बॉर्न फ्री। उनका जन्म से तो वो आजाद थे, जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं थी, ओके। बट धीरे धीरे जब वो बड़े होते गए, इन द फेजेस ऑफ हिज लाइफ ही डेवलप द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ही लर्न दैट ही वॉज नॉट फ्री ड्यूरिंग हिज लाइफ कोर्स, ठीक है। उन्होंने बाद में सीखा कि वो आजाद नहीं है। कैसे हुआ? हाउ डज इट हैपन? जब उन्होंने जन्म लिया, देन ही वॉज फ्री टू डू अकॉर्डिंग टू हिज विल। जब बच्चे थे, जब छोटे थे, इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने झोपड़ी में रहना, खुले आसमान में खेलना, नदियों में तैरना, भैंस के ऊपर बैठ के सवारी करना, टू राइड अ बफेलो। ही वॉज फ्री टू डू एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं होती थी, और उन्हें लगता था कि यस आई एम फ्री, आज़ादी यही है, ओके। बट थोड़ा सा वो जैसे ही बड़े हुए, ठीक है, और एडल्ट में आए, टीनेजर बने, तो उन्हें लगा कि नो, ही वॉज नॉट फ्री बट ही वॉज कर्टेल्ड, हिज फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड, ओके। उन्हें बाद में महसूस हुआ कि वो फ्री नहीं थे, बल्कि उनकी आज़ादी को है वो पर्दा किया गया था, उस पर पाबंदी लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ अपनी मर्जी का कोर्स नहीं चुन सकते हैं एजुकेशन में, या फिर देर रात तक बाहर नहीं रुक सकते हैं, या कभी भी देर रात को बाहर पार्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो उस समय उन्होंने सोचा आज़ाद वो नहीं है, लेकिन इस आज़ादी की समझ या गुलामी की समझ उनको सिर्फ अपने लिए थी। ही थॉट दैट
फ्रीडम ओनली मेंट फॉर हिम, फ्रीडम सिर्फ उनको अपने लाइफ में चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अपने मन का जॉब चूज करना, अपने मन की लड़की से शादी करना और देर रात तक बाहर आना या जाना, देर रात तक ये सब करने को मिल जाए, देन ही वाज फ्री। फ्रीडम के उनके लाइफ में ये मायने थे। बट जब इस फेज से भी वो क्रॉस हुए, व्हेन ही क्रॉस दिस फेज टू, और वो और बड़े हुए, तो उन्हें फ्रीडम का असली मायने समझ में आया। ही गॉट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ओके, एंड व्हेन ही सॉ दैट हिज ब्रदर हिज सिस्टर वेर नॉट फ्री, जब उन्होंने अपने भाई बहनों को देखा, भाई बहन मतलब उनके समाज के वो पूरे लोग, ब्लैक पीपल पे जब हो रहे अत्याचार को देखा कि दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट फ्री टू स्पीक, दे आर नॉट फ्री टू ईट, दे आर नॉट फ्री टू एजुकेशन, दे आर नॉट फ्री टू हेल्थ, एवरीथिंग, किसी भी चीज के लिए उनके पास अधिकार नहीं है, उनके भाई बहनों को सताया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है। देन ही केम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, कि असली फ्रीडम क्या है, और वहीं से उनका लाइफ भी चेंज हो गया, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस में बदल गया। व्हाट इज ट्विलाइट एग्जिस्टेंस? गुमनाम जिंदगी, ठीक है। मतलब कि जब उन्होंने अपने भाइयों बहनों के लिए डिमांड करने शुरू कर दिया, व्हेन ही स्टार्टेड टू डिमांड द फ्रीडम for his brother and sister, okay, he became criminal against the law, as per the law। उस white supremacy के नियम के अनुसार वो क्रिमिनल बन गए, जिसके कारण कई बार उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ता था। एक सीधा साधा व्यक्ति जो सिर्फ अपना जिंदगी जीना चाहता था, अपने परिवार को प्यार करता था, अपने परिवार को पसंद करता था, और फैमिली के साथ रहना चाहता था, अचानक इस स्ट्रगल्स के लिए, इस फ्रीडम फाइट के लिए उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ गया, वो क्रिमिनल बन गया, और कभी छुप कर रहता था, कभी कहाँ रहता था, मींस दिस इज कॉल्ड ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। ओके, उसकी जीवन पूरी तरीके से बदल गई। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अ पर्सन हु लव्ड to live with his life was forced to be isolated with his family, okay, and was made a criminal, okay, as per the law, okay, and forced to live underground in ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। ओके, ऐसे इंसिडेंट हुए। उसके बाद वो अक्सर कई सारे ऑपरेशंस करने लगे, विरोध प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके कारण कई बार उनको जेल में भी डाला गया और बहुत बुरी यातनाएं उनको दी गई है। ये सब अगले पैराग्राफ में आपके पेज नंबर 23 पे डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार से वो एक जो नियम को बिल्कुल पालन करते थे पहले, वो क्रिमिनल में बदल गए। क्यों? सिर्फ इस आज़ादी की डिमांड ने उन्हें क्रिमिनल बना दिया, ठीक है। उस व्हाइट सुपरमेसी के लॉ के अकॉर्डिंग वो क्रिमिनल थे नहीं, ठीक है। देन ही कई बार उनको जेल में डाला गया, और हमेशा वो ये चीज याद रखते थे, ठीक है, कि यदि जेल में अपने दुखी से दुखी समय में ये चीज याद रखते थे कि किस प्रकार से उनके उम्मीद से, एक होप से वो बस अपने फ्रीडम को, स्ट्रगल को, इतना ज्यादा यातनाएं उनके ऊपर की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, बट ही जस्ट केप्ट अ लाइट ऑफ होप, अ बिट ऑफ होप दैट एवरीथिंग विल टर्न इन गुड, सब कुछ अच्छे में बदल जाएगा। ओके, और ऐसे प्रेरणा उन्हें कहाँ मिलती थी? जेल में भी जब होते थे तो वहाँ के जो गार्ड्स होते थे उसमें से कोई एक जो है थोड़ा सा उन्हें कंपैशन के भाव से, विद अ सेंस ऑफ कंपैशन, दया के भाव से उनकी तरफ देख लेता था, बात कर लेता था, उससे उन्हें बिलीव हो जाता था नहीं, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट और हम अपनी लड़ाई आज़ादी की जीतेंगे, और उसी उम्मीद से वो आगे बढ़ते रहे। एट लास्ट उनका ये मानना था कि आज़ादी की ज़रूरत सिर्फ जो कैद हैं वो नहीं, उनको ही नहीं, बल्कि जिन्होंने कैद किया है, जो ऑपरेशन हैं और जो ऑपरेस्ड हैं, ठीक है, जो शोषित हैं और जो शोषण करने वाले हैं, जो एक्सप्लॉइटेड है और जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, दे बोथ नीड द फ्रीडम। दोनों ही आज़ादी के हकदार हैं, दोनों की ही आज़ादी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड को तो सिंपली ही इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उसको शोषित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन जो शोषण करने वाला व्यक्ति है वो नकारात्मक विचार के अधीन है, नकारात्मक विचार का गुलाम है, उसको उससे भी आज़ादी दिलानी चाहिए। ऐसे नेल्सन मंडेला का सोच था। एंड विद ऑल हिज एफर्ट, ड्यू टू सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट, ड्यू टू आफ्टर मेनी विजिट्स ऑफ प्रिजन, कई बार जेल जाने के बाद, ओके, एंड ऑन द डे दैट डे कम 10 मई 1994, वो दिन आखिर में आ गया
ठीक है, 10 मई 1994, जिस दिन एक डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री, फ्री इलेक्टेड कंट्री बनी गवर्नमेंट में। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, नेल्सन मंडेला ने हमारे इलेक्शन लड़ा वहाँ पर, और इन्होंने पूरे 250 सीट्स 400 सीट्स में से जीते एंड सत्ता में आए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ struggle for freedom in South Africa. Okay, I hope you understand everything very clearly, and if any problem, if any confusions, you can comment me into the comment sections. Okay, and I hope I have already spoken in bilingual language, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा एफर्ट आपके लिए पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे आपकी तरह उनको मदद मिल सके। थैंक यू।